السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں مہانور کیسر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے ایک افسر کا تبادلہ کر دیا۔ ایس پی صدر لاہور شاہ رخ خان کو ایس پی سی سی ڈی گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے ایک افسر کا تبادلہ کر دیا۔ ایس پی صدر لاہور شاہ رخ خان کو ایس پی سی سی ڈی گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک افسر کا تبادلہ کر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے ایک افسر کا تبادلہ کر دیا ہے، جبکہ ایس پی صدر لاہور شاہ رخ خان کو ایس پی سی سی ڈی گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے ایک افسر کا تبادلہ کر دیا۔ ایس پی صدر لاہور شاہ رخ خان کو ایس پی سی سی ڈی گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم کی جانب سے ایک افسر کا تبادلہ کر دیا گیا، جبکہ ایس پی صدر لاہور شاہ رخ خان کو ایس پی سی سی ڈی گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کا 9 اگست کے بجائے 16 اگست کو دھرنا دینے کا فیصلہ، جبکہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں یوم آزادی کی تقریبات کو بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنے ہوں گے، جبکہ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر لاکھوں کارکنان کے ساتھ دھرنا بھی دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا 9 اگست کے بجائے 16 اگست کو دھرنا دینے کا فیصلہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں یوم آزادی کی تقریبات کو بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنے ہوں گے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر لاکھوں کارکنان کے ساتھ بھی دھرنا دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا 9 اگست کے بجائے 16 اگست کو دھرنا دینے کا یہ فیصلہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں یوم آزادی کی تقریبات کو بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنے ہوں گے۔ یہ مشاورت میں فیصلہ کیا کہ 14 اگست کی جتنی سرگرمیاں ہیں اس میں پوری جماعت اسلامی اور اس کے یوتھ، خواتین ونگ سب پارٹیسپیٹ کریں گے بھرپور طریقے سے۔ ہم پاکستان کی جو بنیادیں ہیں، جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، جو عدل کے نظام کی تمنا تھی جس کے لیے پاکستان بنا، اس کی خاطر لوگوں کو مجتمع بھی کریں گے، رابطہ بھی کریں گے، پروگرام بھی کریں گے اور جشن بھی منائیں گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد 16 تاریخ کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنوں کا آغاز کیا جائے گا۔ لاہور میں ہم انشاءاللہ سی ایم ہاؤس پہ دھرنا دیں گے، اور خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور سندھ میں گورنر ہاؤسز کے اوپر دھرنے دیے جائیں گے، اور یہ دھرنوں کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ ان دھرنوں کے نتیجے میں حکمرانوں کو ہم پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے۔ تو یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، ہر خاتون، ہر فرد، ہر تنخواہ دار، ہر مڈل کلاس اور غریب، یہ کہ جس مہنگائی کی آگ میں ہمیں یہ جلا رہے ہیں، اب یہ سلسلہ مزید نہیں چلے گا، ہمیں ہمارا حق دینا پڑے گا۔ میں اس موقع پر جو مشاورت میں ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہمارے خطے میں ہوئی ہے، جس میں پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے، ہم اس دفاعی معاہدے کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم نے یہ صوبائی دارالحکومت میں موسلا دھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ چند روز تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ باغوں کے شہر میں مانسون کی موسلادھار بارش نے رنگ جما دیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بادل برسنے سے ہبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ بارش کے بعد شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 جبکہ زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ صبح 9 بجے کے قریب شروع ہونے والی بارش سے لاہور میں اب تک اوسطاً 24.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ ایئرپورٹ کے اطراف سب سے زیادہ 104 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ مغل پورہ میں 32.8، تاج پورہ میں 40، نشتر ٹاؤن میں 27.6، ہوڈیالہ ڈیفنس روڈ پر 62، شادی پورہ میں 28.2، کہنا میں 75.6 اور مناوا میں 57.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ علی پارک، بیدیا روڈ کی گلیاں، محلے اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ بارش کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا اور متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم میں صورتحال کا جائزہ بھی لیا جانے لگا۔ بارشوں کے دوران شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि दरिया सिंध में बास मकामात पर निचले दर्जे का भी सैलाब है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया चनाब, झेलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। हुकूमत पंजाब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखें। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। चनाब, झेलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। डेरा गाजी खान की रूद कोहियों में पानी का बहाव भी मामूल के मुताबिक है। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव 3,51,000 क्यूसेक, चश्मा पर 3,12,000 और तौंसा के मकाम पर 3,30,000 क्यूसेक है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। DG PDMA सैफ अनवर झप्पा का कहना है कि शहरियों की हिफाजत के लिए सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। दरियाओं, नहरों और नदी नालों की तरफ सैर व तफरीह से गुरेज किया जाए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ज़ैद बिन मकसूद कहते हैं कि बारिश से मुतासरा काम जल्द बहाल किए जाएं। तरक्याती मंसूबों में मयार, रफ्तार और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब ज़ैद बिन मकसूद ने मुरीद के फिरोजवाला और कोट अब्दुल मालिक में जारी तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब तरक्याती प्रोग्राम के तहत शेखुपुरा में 17 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जारी हैं। मुरीद के मेन अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक का सिविल वर्क मुकम्मल, जबकि पंपिंग मशीनरी की खरीदारी बाकी है। बारिश के बायस 370 रनिंग फीड स्टोम वाटर ड्रेन पर काम आरसी तौर पर मुअत्तल है, जबकि कोट अब्दुल मालिक में 3200 रनिंग फीड ड्रेन का काम मुकम्मल कर लिया गया। जश्न आज़ादी पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस का वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजों के खिलाफ सख्त मुकाबला। CTO लाहौर कहते हैं कि वन व्हीलर्स और सहूलतकार मोटर मैकेनिक्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, जबकि वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिल तैयार करने वाले मैकेनिक भी जेल जाएंगे। बगैर सलेंसर और बुफल निकालने वाले हुल्लड़बाजों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होंगे। रिपोर्ट देखें। जश्न आज़ादी पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजों के खिलाफ कमर कस ली। वन व्हीलर्स के साथ मोटरसाइकिल तैयार करने वाले मैकेनिक्स और सलेंसर उतारने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी का वन व्हीलिंग, कम उम्र ड्राइविंग और हुल्लड़बाजी के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं कि वन व्हीलर्स और उनके सहूलतकार मोटर मैकेनिक्स दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिल तैयार करने वाला मैकेनिक भी जेल जाएगा। जश्न आज़ादी पर सौती आलूदगी फैलाने, बगैर सलेंसर और बुफल निकालने वाले हुल्लड़बाजों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होंगे। CTO लाहौर ने सर्कल अफसरान को वन व्हीलिंग और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ खसूसी मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। साबका रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर्स की डोर नॉकिंग के लिए लाहौर पुलिस को भी दरख्वास्त कर दी गई। सोशल मीडिया पर वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी की तशहीर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया है। जश्न आज़ादी के मौके पर शहरियों, खसूसन वालिदैन को मुस्बत किरदार अदा करने की हिदायत की गई है। थाना टाउनशिप में 2 खवातीन की मौत का मामला। खवातीन की थाने में कुर्सियों पर बैठे होने की वीडियो भी सामने आ गई है, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खवातीन की मौत की वजह तबई है। इंक्वायरी में पुलिस तशद्दुद साबित हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थाना टाउनशिप में 2 खवातीन की मौत के मामले की तहकीकात में पेशरफ। दोनों खवातीन की थाने में बैठे हुए होने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में दोनों खवातीन को सेहतमंद मुहर्रर के कमरे की कुर्सियों पर बैठा हुआ देखा जा सकता है। दोनों खवातीन आपस में और मुहर्रर के साथ बातचीत करते हुए भी दिखाई दी। बादशाह थाने में अचानक दोनों खवातीन की तबीयत खराब और बर वक्त हॉस्पिटल न पहुँचाने पर मौत वाक़ हुई। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि पुलिस टीम ने 4 अगस्त को 15 की कॉल पर कार्रवाई करते हुए दोनों खवातीन को हिरासत में लिया। ये खवातीन नौसरबाज और मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन की मौत की वजह तभी थी। इंक्वायरी रिपोर्ट बहुकुम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर 1 माह के अंदर जमा करवाई जाएगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि अगर इंक्वायरी और फॉरेंसिक रिपोर्ट में खवातीन पर पुलिस तशद्दुद साबित हुआ तो जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि शहरों के मेन रोड के साथ साथ गली मोहल्लों की सफाई भी बेहद ज़रूरी है। सुथरा पंजाब मेरे दिल के बहुत करीब है। मज़ीद बेहतर नताइज के लिए मज़ीद मेहनत करना होगी। सफाई के निज़ाम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने हुकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए 7 रोज़ बाद इजलास दोबारा तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़िले सदारत सुथरा पंजाब के हवाले से जायजा इजलास।
सुतरा पंजाब को सूबे भर में मजीद बेहतर बनाने का हदफ दे दिया गया। वज़ीर आला का मार्केटों, बाजारों और कमर्शियल एरियाज में यकसा तर्ज की डस्टबिन और गार्बेज बैग्स के इस्तेमाल का हुक्म। मरकजी शाहराओं की सुबह 5 बजे धुलाई और सफाई, जबकि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने वाज़ेह किया कि सफाई के निज़ाम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमर्शियल एरिया से वेस्ट उठाने के लिए औकात-ए-कार मुकर्रर किए जाएं। खाली प्लॉट्स, गली मोहल्लों, मेन रोड्स, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और तालीमी इदारों, अस्पतालों के इतराफ में भी सफाई यकीनी बनाई जाए। सब्जी और फ्रूट मंडियों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जबकि शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों, रेलवे ट्रैक के इतराफ, अर्बन एरियाज की सफाई रोजाना की जाए। वज़ीर आला ने सुतरा पंजाब वर्कर्स को हर माह 5 तारीख तक तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाने और ताखीर की सूरत में फौरी एक्शन की हिदायत की। कॉन्ट्रैक्टर्स के वाजिबात भी जल्द अदा करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने कहा, इलाकाई ज़रूरियात के मुताबिक सफाई वर्कर्स और मैकेनिकल मशीनरी की कमी पूरी की जाए। एडीसी सोशल सर्विसेज सूबे भर में सफाई की सूरत हाल की मॉनिटरिंग करे। डेप्यूटी कमिश्नर्स मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर्स और एमडी वासा से मुसलसल राबते में रहे। फील्ड मॉनिटरिंग अफसरान के लिए यकसा यूनिफॉर्म और ब्रांडेड बाइक्स की हिदायत भी कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सुतरा पंजाब की गाड़ियों, कंटेनर्स और वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स की बाकायदगी से सफाई की हिदायत करते हुए कहा, शहरों के मेन रोड्स के साथ साथ गली मोहल्लों की सफाई भी बेहद जरूरी है। सुतरा पंजाब मेरे दिल के बहुत करीब है। मजीद बेहतर नताइज के लिए मजीद मेहनत करना होगी। पीटीआई के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त से मुतल्लिक दरखास्त का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत देने का मामला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने मियां उस्मान अकरम की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जलसे की इजाजत न देना आइन के आर्टिकल 16 की खिलाफ वर्जी है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत हसास इदारों का इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मीनार पाकिस्तान पर जलसा न करने की तजवीज़ दी गई। सरकारी वकील के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने 3 अगस्त को जलसे की इजाजत के लिए दी गई दरखास्त खारिज कर दी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त निपटाने की बजाय इसे खारिज करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता कर दिया गया। उग्रा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे और डीजल 1 रुपया 50 पैसे सस्ता किया गया। 10 अगस्त तक के लिए नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी पर शहरियों का बड़ा रिलीफ देने का मुतालबा। शहरी कहते हैं, आज सस्ता किया है तो कल महंगा कर दिया जाएगा। 1-2 रुपये कम करने का कुछ फायदा नहीं। इतना तो होना चाहिए ना, बढ़ाने में ज़्यादा बढ़ाते हैं, कम करने में ये कम बढ़ाते हैं। ये कम से कम इनको ना कोई 20-25 रुपये कम करना चाहिए। नहीं वैसे, क्योंकि अगली दफ़े फिर डबल करके बढ़ा देना उन्होंने, ऐसे ही रखना इन्होंने। अगर रुपया कम करते हैं 2 रुपये 3 रुपये बढ़ा देते हैं। आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है हर तरफ से। गवर्नमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने बाकी मुल्कों के हिसाब से उन रेशो है उसके हिसाब से होना चाहिए। ओगरा के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 10 अगस्त तक के लिए किया गया है। मजीद रद्दोबदल 11 अगस्त को होगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुआयना मुद्दत तक पहिया जाम हड़ताल शुरू। गाड़ियां अड्डों तक महदूद और माल बरदार सर्विसेज भी बंद कर दी गई। ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल रोकने का मुतालबा। कहते हैं कि 8 माह गुजरने के बावजूद मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुल्क में माल बरदार ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालिबात की मंजूरी तक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल शुरू कर दी। सदर मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल के निर्खों में रोजाना रद्दोबदल खत्म करने का मुतालिबा किया है। डीजल इन्होंने डबल कर दिया है। पहले जो 260-65 में मिलता था वो 500 पे गया, अभी कुछ 400 के करीब है, 350 के। ये तमाम चीज़ों को इनको वापस लेना पड़ेगा। और जो रोज़ की डीजल की कीमतें बढ़ाना कम करना वो हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उनको 1 माह के लेके जाएं, 1 माह में के बाद कीमतें बढ़े या कम हो हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये हमें नामंजूर है। ट्रांसपोर्टर्स ने वाज़े किया है कि मुतालिबात पर अमल दरामद तक हड़ताल जारी रहेगी, जबकि हुकूमत की जानिब से मसले के हल के लिए आइंदा का लाहे अमल सामने आना बाकी है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में महंगाई के नए तूफान से शहरी मजीद परेशान।
दाल चना की कीमत में फी किलो 20 रुपए का इजाफा। सफेद और काले चने का रेट भी 20 रुपए फी किलो बढ़ गए, जबकि मार्केट सराय ने दालें मजीद महंगी होने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। ये रिपोर्ट देखें। आवाम पर महंगाई के बार जारी, दाल चना की कीमत में फी किलो 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। शहर की मार्केटों में दाल चना के थैले की कीमत 1000 रुपए बढ़ा दी गई। दाल चने का 50 किलो का थैला 9700 रुपए से बढ़कर 10700 रुपए का हो गया। परचून की दुकानों पर दाल चना की कीमत में फी किलो 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। दाल चना 220 रुपए की बजाय 240 रुपए फी किलो में बिकने लगी। दाल चना महंगी होते ही सफेद चने और काले चने की कीमत में भी 20 रुपए फी किलो इजाफा। सफेद चने का रेट 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा, जबकि काले चने 220 की बजाय 240 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि दालों का महंगा होना समझ से बालातर है। हुकूमत महंगाई माफिया के साथ आईनी हाथों से निपटे। दूसरी तरफ मार्केट सराय ने दालों की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है।